Now this is the second lecture of data interpretation, and the agenda for today's session, which will be approximately about 30-35 minutes, is how to tackle data interpretation in CLAT. What are the shortcuts that you can use? What we'll do is that we will build up every week. I'll solve two sets and show you how quick calculations can be done, right? So I'll take two sets from this sheet today, and we will look at shortcuts. Once we have built a certain base, then I'll show you how to crack the questions of CLAT, right, which have come in the past without solving much, right? You don't have to use pen and paper, and by sound logic and quick calculations, you can get to the answer. And that's where you save time. Generally, you need to spend about 7 to 8 minutes in solving some 8 to 9 questions in quant, not more than that. The cutoff would be 10 minutes max for solving two sets, which would mean typically about 9 to 10 questions, right? So let's just start working towards it now. Now look at the first set. Here we have given the sales, which is in rupees lakhs, right, of four companies, A, B, C, D. If you look at company A, it is 120 crores in 2004. 2005 it's 130 crores. 2006 is 145. 2007 is 160. And similarly, it's given for B for 2004, 5, 6, and 7. Similarly, C is 170, 185, 190, 200. D is 110, 125, 140, and 150. Right? If you want to solve this set, right, just solve it. You can just pause and solve it. What I will do is show you the tricks in this question to solve, right? Look at the first question here. By what percentage the sales of company B in 2005 more than that of company in 2004? So we are comparing 120 and 166. So typically whenever we are saying more than, right, we are looking at the difference here. Now there are two things. Well, let's look at traditional way of doing the question. A traditional way of doing this question is we do final minus initial upon initial into 100. This is the traditional way of doing the question, right? We'll use the same funda, but we'll do it slightly differently. What we'll just do is 120 has become 166, right? Now, this difference is a 46. So we are doing a 46 upon 120. Now look at this value. So we're doing 166 minus 120, which is 46, upon the base value, which is 120. Now we have options in front of us. There are four options. That one option is above 40%, right? And there are two options in 30%, and one option is 20%. Now what we need to see here is the denominator. Our denominator here is 120. Now obviously 120 का जो 10% है वो होता है 12. तो 120 का 40% जो होगा 40% वो कितना हो जाएगा? 120 का 40% हो जाएगा 48, 48. We want 46. Our numerator has 46. Therefore, the answer cannot be 46%, right? Because 40% of 120 we are getting as 48. So definitely our answer has to be less than 40%, right? So we have eliminated option 46%. Similarly, look at 20% here. 10% हो गया इसका 12, तो 20% हो जाएगा 24. तो आंसर कभी भी 20% नहीं हो सकता, because we want 46 in the numerator. Therefore, this also cannot be the answer. So we are left with 38.33 and 33.33. So what we'll do is we'll just find out इसका 40% तो हमें पता ही है, हमने निकाल लिया था 48 से, right? अब ये 38.33 और 33.33 है, तो हमने देखा 35% कितना है, 35%, और ये मेंटली हम कर रहे हैं. तो 35% का मतलब 40% से हमने 5% को माइनस किया. एंड व्हाट इज 5%? 5% इज 10% का आधा, और यहाँ पे हमें पता है 10% है 12, 10% इज 12, दिस इज 12. तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 12 का आधा, which is 6. So basically 48 minus 6 is equal to 42. This is 35%, right? But हमें चाहिए कितना? 46. Alright? तो हमें 35% तक जाने की जरूरत नहीं है.
आंसर 35 और 40 के बीच में होगा। तो अगर आंसर 45 और 40 के बीच में होगा तो आंसर हो जाएगा 38.33। Okay, so this is one way of doing this question. So we have taken the percentage of the denominator and calculated on the basis of that. Okay, one way of doing this question. So let's look at multiple ways now. So we have again 166, 120. So 46 upon 120, right? So what else can we do? Okay, we can also do 46 divided by 12. We calculate this value. Let's look at multiple ways. So whatever strikes first, that's the best method for you. Okay, so this becomes 6 and this becomes 23. So 6, now this is an improper fraction, 23 upon 6. So this can be written as 6 into 3, that is 18 and 5. Right? Mind you, there is a 10 also here divided by 10. So it's 3 5 by 6 divided by 10. Okay? Now, what is 5 by 6? 5 by 6 is 1 minus 1 by 6. If you know it, it's better. Or 100% minus, this is 100% minus 16.66%, or, so you should know it back of your mind, 83.33% or 0.83. Right? So this is 3.833. And since it is divided by 10, it becomes 38.33%. Or 0.3833% or 38.33%, whatever way you want to write it. Okay, so this becomes 38.33%. So what we have done here is we have converted that into a improper fraction into a mixed fraction and then calculated the value. What are we asking in the second question? In the second question, it's asking for how much is the average sales of company C more than the average sales of company D during this period, right? So C यहाँ पे क्या आ रहा है? 170, 185, 190, 200. तो हमने सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, राइट? सो बेसिकली वी आर डूइंग 170 प्लस 185 प्लस 190 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम माइनस किससे कर रहे हैं? हम डी से कर रहे हैं। वो कितना है? 110 प्लस 125 प्लस 140 प्लस 150 और ये डिवाइडेड बाय 4। गॉट इट? ये समझ आया? तो हम अब इसको जब माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? सो लेट्स जस्ट डू इट. इट इज 60 प्लस 60 और यहां पे आ गया 50 और 50 और ये हो गया डिवाइडेड बाय 4. ऑलराइट, सो 120 प्लस 100 which is 220 divided by 4 which is equal to 55. Now do we have to do this? Not really. We don't have to do this. We can solve this question by logic. What we have just done here is a subtraction, right? Everybody can do this. और यहाँ पे इसका एवरेज निकाल लिया, ये भी एवरेज निकाल लिया, by 4 करके फिर माइनस कर दिया, वो भी रिजल्ट सेम देगा. How can we play smart in this question? How can we play smart? So what we'll just do is, अगर हमारे पास एक 10 होता और एक 20 होता, तुम्हारा एवरेज होता 15. अगर हमारे पास 2 10 होते और 2 20 होते, तभी भी हमारा एवरेज होता 15. अगर हमारे पास 3 10 होते और 3 15 होते, तभी भी हमारा एवरेज होता 15. तो एक 10 को काउंटर करने के लिए 20 है, इसलिए हमारा मिडिल वैल्यू 15 आ रहा है. तो अगर दोनों जगह वेट सेम है तो हमारा एवरेज बीच का होगा. तो अगर यहां ध्यान से देखो, ये 60 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 50 है, तो 60 का काउंटर कर रहा है 50. अगर एक ये 60 होता, एक 50 होता, तो एवरेज हो जाता 55. 2 60 हैं और 2 50 हैं, तो एवरेज हो जाएगा 55. एज सिंपल एज दैट, राइट? तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, हमें बस काउंटर देखना है. 60 का काउंटर 50 कर रहा है तो 55 होगा. 2 60 होंगे और 2 50 होंगे, तो आंसर हो जाएगा 55. एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, सो अवॉइड द मैथ्स, आई मीन द सब्ट्रैक्शन इन दिस. दैट इज जस्ट गोइंग टू टेक मोर टाइम. ओके, नेक्स्ट वन. थर्ड में आते हैं. If the 4 companies account for 40% of market share by value in 2007, अब मार्केट शेयर क्या होता है? मैंने कितना बेचा और टोटल मार्केट कितने का है, इसको हम कहते हैं मार्केट शेयर. मैंने कितना बेचा और टोटल मार्केट कितने का है. तो यहां पे पूछ रहा है 4 कंपनीज अकाउंट फॉर 40% ऑफ द मार्केट शेयर बाय वैल्यू. ठीक है, इन 2007. अब एक बार हम लोग 2007 को ऐड कर लेते हैं. अब 2007 को अगर हमें ऐड करना है तो
ये 40 कम है 200 से, ये 10 कम है, ये 50 कम है, यानी कि ये कितना कम हो गया 50, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 700। तो हमने कुछ नहीं किया, 200 200 200 200 कर लिया, तो 200 200 200 200 हो गया 800, और ये 40 कम है, ये 10 कम है, और ये 50 कम है, तो ये टोटल हमारा हो गया 700। इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग आई एम जस्ट सीइंग द डिफरेंस फ्रॉम 200, तो ये मेरा 700 हो गया। अब ध्यान से एक चीज देखो, ये लिखा हुआ है 700 700 lakhs, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज विद करोड़ एंड लैक्स, हमें नंबर से मतलब है, नंबर आखिरी में 16 होगा, 20 होगा, 14 होगा, 17.5 होगा। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, अब ये जो जो भी हमारी वैल्यू है उसका 40% जो है वो 7 होना चाहिए, राइट, बिकॉज ये हमारा लाख, 700 लाख, 700 लाख का मतलब 7 करोड़ हो गया, बट अगेन नंबर से मतलब रखो, आखिरी में 7 आना चाहिए। अगर मैं सपोज 20 करोड़ लेके चलता हूं तो हम इसे ऑप्शन से काम करेंगे। अगर 20 करोड़ आंसर 20 करोड़, अच्छा पहले नॉर्मल तरीका देखते हैं। नॉर्मल तरीका यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमने ऐड किया 700 lakhs, ठीक है, 100 lakhs मेक अ करोड़, तो ये 7 करोड़ हो गया। तो बेसिकली 7 CR इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल मार्केट। तो मेरा टोटल मार्केट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 CR डिवाइडेड बाय 0.4। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। अच्छा, ये करने की जरूरत नहीं, ये मैथ्स है। लॉजिक क्या है, 20 का 40% निकालो, 20 का 40% कितना हो गया 8 करोड़, हमें चाहिए कितना, हमें 7 करोड़ चाहिए, तो 20 हो नहीं सकता, आंसर 20 से कम है। 16, अच्छा दोनों देखो, अच्छा हाँ 16, 16 का 40% हमने किया, कितना आया 6.4 करोड़, 6.4 करोड़, हमें चाहिए कितना 7 करोड़, तो आंसर 16 से ज्यादा है और 20 से कम है, तो आंसर हो जाएगा 7.5, ठीक है। So 17.5 crores will become our answer. Okay, and you can look at it also. 17.5 into 4 is giving you 7. 17 into 4 is 68, right? 17.5 into 4 is 70. That will give us an answer. All right. So that's how you are going to do this question. All right. So let's just play around a little bit with the set here. अगर मैं तुमसे पूछूं कि A का मैक्सिमम ग्रोथ रेट कौन से साल में हुआ, मैक्सिमम ग्रोथ रेट, तो यहाँ पे 120 130 बना, 130 145 बना, 145 160 बना। यहाँ पे क्या ग्रोथ रेट हुआ है, 12 बन गया है 13, तो ये बन गया है 1/12 का ग्रोथ। 1/12 कितना होता है 8.33%। सो प्लीज बिकम कंफर्टेबल विद ऑल द रेशियोज, ओके, फ्रॉम 1/2 से लेकर के 1/25 तक, यू शुड बी क्वाइट कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। सेकेंड, 130 has become 145. What is the growth rate here? This is coming to, this is coming to, so what is the value coming to? This is nothing but 13 plus 2 upon 130. अब ये निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, ये हो गया हमारा 10%, एंड 2 upon 130 कितना हो जाएगा, 2 upon 130, 2 upon 130 is slightly more than 1%, slightly more than 1%. So this answer will be slightly more than 11%, slightly more, थोड़ा 11% से ज्यादा है। ओके, थर्ड में आते हैं, 145 से लेके 160, 145 से लेके 160, लेट्स जस्ट फाइंड दिस आल्सो। ये 15 हो गया बटे 145, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस वैल्यू, तो दिस इज 14.5 प्लस 0.5 अपॉन 145, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 10% हो गया, और ये 0.5 अपॉन 145 जो है ये 1% से कम है, यानी मेरा आंसर 10 और 11% के बीच में है। तो मेरा मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो होगा वो 130 से लेके 145 तक का है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं हम लोग, अगर सपोज हमें ग्रो करना है, इसमें देख लेते हैं बी से लेकर के बी का मैक्सिमम ग्रोथ रेट कहां पे आया। देखो ये तो बहुत ही आसान है, बिकॉज एक साल ड्रॉप है, तो हमें टिपिकली हमें क्या देखना है, हमें इसको कंपेयर करना है और हमें इसको कंपेयर करना है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें डिफरेंस ज्यादा है तो ये दिख ही रहा है, बट एनीवेज ये 150 से 6, तो इसको करने का तरीका क्या, 6 का ग्रोथ आया किसमें 150 में, तो ये पता है 4% ही है। 150 का 1% 1.5 होता है, तो 4% हो गया, राइट। और ये कितना आ रहा है, ये हो गया 30 बटे 160, 30 अपॉन 160, ये स्लाइटली लेस देन ये 10% से ज्यादा है, बिकॉज 3 है ऊपर, ठीक है, तो 10% से ज्यादा है, बिकॉज 116 का
10% कितना होगा 1.6 और ऊपर 3 बैठा हुआ है, तो आंसर डेफिनेटली 10% से ज्यादा है, तो ये इसका ग्रोथ रेट इससे ज्यादा हो। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको देख लेते हैं डी को। ये 15 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। देखो ये भी साफ है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें ये निकालना है मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसका है। तो 15 बटे 170, राइट, 5 बटे 185 and the last one is 10 upon 190. If you just compare these three, this value हमारा यहाँ पे इसको कंपेयर करो। सबसे पहले देखो ये तो कम ही हो गया, ये मैंने बेस बढ़ाया और न्यूमरेटर कम किया, तो ऑब्वियसली ये तो कम वैल्यू होगी। हमने बेस बढ़ा दिया, हमने डिवाइड ज्यादा किया और ऊपर का न्यूमरेटर कम कर दिया, तो ये तो ऐसे ही चला गया। यही चीज इसमें भी अप्लाई करना है, हमने बेस बढ़ा दिया, डिवाइड ज्यादा से किया और न्यूमरेटर हमने और कम कर दिया, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही होगा। और ऐसे भी देखो 150 अपॉन 170, ये वैल्यू जो है 10% से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये 17 इंटू 9 अगर हम करेंगे 17 इंटू 9 ये होता है 153, तो ऑलमोस्ट ये 0.9 है, ऑलमोस्ट, राइट, ये ऑलमोस्ट जो है 0.9 है। इसका जो 10% है, 10% वो 17 होगा, ये होगा अराउंड 9%। और इसको अगर तुम देखो 19 ऊपर 10 है और नीचे 190 है, राइट, तो इसका अगर 10% करोगे तो 19 होगा, राइट, और इसका तुम अगर 90% भी करोगे तो 19 इंटू 9 अगर करते हो तो दैट वैल्यू 19 इंटू 9 बिकम्स 171, तो ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, सो अगेन हमें अगर हम 90 का 90% करेंगे तो ये आएगा 17.1। ठीक है, 17.1, यहां ऊपर क्या बैठा हुआ है 10 बैठा हुआ है, तो दिस वोंट वर्क। ऑलराइट, दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, सो व्हाट वी हैव टू सी इज अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और मैंने डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया, डी प्लस कर दिया और न्यूमरेटर उतना ही है, तो ऑब्वियसली वैल्यू डाउन हो जाएगी। जैसे कि अगर 10 बटे 20 है और मैंने इसको कर दिया 10 बटे 40, तो यहां तो 50% था, बट अभी हो जाएगा 25% बिकॉज मैंने ज्यादा से डिवाइड किया। और अगर मैंने डबल अटैक कर दिया, 10 बटे 20 है और इसको कर दिया 5 और इसको कर दिया 40, तो ये तो इससे भी डाउन आ जाएगा। ऐसे यहां पे देखो 1 बटे 8 हो गया, विच इज इक्वल टू 12.5%, राइट। सो दिस इज हाउ यू डील विद क्वेश्चंस। ओके, अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, दैट जब भी परसेंटेज कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो ऑब्जर्व करो इन टर्म्स ऑफ रेशियोज ऑल्सो। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग रेशियो से देखते हैं, राइट, इट मे नॉट बी द बेस्ट क्वेश्चन फॉर चेकिंग रेशियोज, बट कॉन्सेप्ट समझो क्या है इसका। 110 और 125 है, 110 से 125 है, कितना परसेंटेज ग्रोथ है सपोज, तो ये दोनों 5 से जाता है, ये हो गया 22 और ये हो गया 5 25, करेक्ट। तो बेसिकली 22 हैज बिकम 25, तो मोटा मोटी हमें 110 और 125 को कंपेयर नहीं करना, हमें 22 को 25 से कंपेयर करना है। मैंने कहा ना बेस्ट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज 22 कटेगा नहीं, तो मेरा ओवरऑल ग्रोथ रेट कितना हुआ 3 बटे 22 का होगा, 3 बटे 22 का होगा। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली ये 10% से ज्यादा है बट 20% से कम है, तो अगर इसको करना है सपोज तो ये हो जाएगा 2.2 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 22, ये हो गया मेरा 10%, इसका 1% हो गया 0.22, राइट, हमने 10% निकाल लिया है और ये 4% से कम है, तो मुझे अपने आंसर चॉइस में देखना है 13% से लेकर के 14% के बीच का ऑप्शन। उसी तरह दूसरा सेट देखते हैं, यहां पे मेरा कितना ग्रोथ हुआ है, सपोज 140 से 150 है, ये तो आसान है, तो 0 0 कैंसिल कर दिया, तो 1 बटे 14 का ग्रोथ आ गया, राइट, दिस इज नथिंग बट 7.14%। ठीक है, अच्छा 125 से 140 कितना हुआ, ये हो गया 125, हम वैसे भी कर सकते हैं 15 बटे 125, बट हम लोग एक बार रेशियो से करते हैं, ये मेरा ग्रोथ आया सपोज, ये डिफरेंस आया 125 से हम 140 हो गया, तो यहाँ 5 कितने में गया 25 में गया, और ये 5 कितने में गया 28 में गया, सो मेरा ग्रोथ कितना आया अगेन 3 बटे
25। अब इसको हमने निकाला कितना है, तो 3/25 का मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा 12%, बिकॉज 12 into 25 is 3, right? That's how you play around a question. Okay, I hope I made a point here and you have understood the concept. Okay, now I'll take a simple pie set. So first I'll explain what a pie chart is like. So this is a pie chart. Now in the pie chart, we have given the market share of 5 companies, PQRS, television market, and ये वॉल्यूम वाइज दिया हुआ है। देखो जब भी क्वेश्चन वॉल्यूम वाइज दिया हुआ है तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में हर समय आनी चाहिए, नॉट रेलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन, बट वॉल्यूम इनटू प्राइस गिव्स यू वैल्यू। रिमेंबर दिस, ठीक है, ये बहुत बार काम आएगा, हम लोग आगे जब सेट्स करेंगे तो ये तुम्हें ये काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इफ S is the others category, अब others category, अब यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है T, P, Q, R, T का है कितना परसेंट ये, और ये ब्रेकअप किसमें दिया हुआ है, परसेंट मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मैंने तुम्हें समझाया हुआ है, मैंने कितना बेचा और टोटल मार्केट कितने का है। लेट्स से मैंने टोटल मार्केट अगर 100 का है और मैंने 30 बेचा तो मेरा 30% मार्केट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए X has a share of 30% in this category. X कितना है, 30. We're talking about X. S is the others category. So we're talking about S. So S is here, right? और इसमें 30% है X का. Find the number of TV sets. अब एक चीज ध्यान से देखो, टोटल 4 लाख दिया हुआ है, ये 4 लाख का 10% और 10% का 30%। तो हमें बेसिकली माइंड में कैलकुलेशन क्या करना है कि 4 into 3 हो रहा है, तो 4 into 3 हमें देखना 12, आंसर 12 हो गया, हमें जीरो से मतलब ही नहीं। Why do waste time? 4 into 1 into 3, why 3? Because 30% है, तो basically 4 lakhs into 10% into 30%, but do not waste time in putting the zeros, right? What we'll do is 4 into 1 into 3, that's about it, and the question is done. Okay, next one. If the total sales of two products P2 and P3 is 30,000, find the percentage contribution of products P2 and P3 in the total sales यूनिट वाइज ऑफ कंपनी P इन द ईयर। अच्छा, अब P ने कितना किया, P यहां पे हो गया 20 है ना, P 20 है यहां। तो अगर हम, और इसका कितना वैल्यू आ रहा है 30,000, तो ये तो इसने फ्लैट अमाउंट दिया हुआ है। जब फ्लैट अमाउंट दिया हुआ है 30,000 तो हमने 30K लिख दिया, K का मतलब 1000, और इसको तो हमें अब कन्वर्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज ये 20 है, तो 20% ऑफ 4 लाख तो 80K हो गया। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट आस्किंग फॉर अ फ्रैक्शन कि 3/8 कितना होता है। तो अगर तुम्हें पता है कि 1/8 अगर 12.5% है तो तुम ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकालोगे, बिकॉज 3/8 दिस इज नथिंग बट 3/8, तो 3/8 इज 4 minus 1/8, 4/8 minus 1/8, 4/8 50% होता है और 1/8 12.5% होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 37.5%। बट बी कंफर्टेबल विद द रेशियो कि 1/8 कितना है, 3/8 कितना है। सिमिलरली अगर मुझे 5/8 निकालना है तो 5/8 हो गया, मतलब 4 plus 1/8 हो गया, तो 62.5% हो गया। उसी तरह मुझे 7/8 निकालना है, 7/8 कितना हो जाएगा, 1 minus 1/8, 1 का मतलब 100% और 1/8 का मतलब 12.5%, और दिस बिकम्स 87.5%, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट गिविंग यू अ बेसिक फाउंडेशन नॉलेज अबाउट हाउ टू डील विद कैलकुलेशन। तुम्हें नंबर्स के साथ प्ले करना है, ठीक है, और नंबर्स को एंजॉय करना है, वो प्रोसेस को एंजॉय करना है, तभी तुम डीआई के सेट को 10 मिनट के अंदर फ्लैट में कर सकते हो, राइट। सो ट्यून इन फॉर मोर, नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस 2 more sets, and once we have built a basic foundation, right, then we will start doing some CLAT and mock questions also, right. I'll teach you how to solve mock questions in less than 10 minutes. All right, if you like it, put the like button. This is Satyam Sahai signing off from CLAT Possible.